پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبریں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ توسیع قرض سہولت پروگرام کے تحت $1 ارب قسط کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے نئے پروگرام کے تحت $1 ارب 30 کروڑ بھی منظور۔ حتمی منظوری IMF بورڈ کرے گا۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ گزشتہ 18 ماہ میں پاکستان نے معاشی استحکام کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ مہنگائی میں کمی آئی۔ پاکستانی حکومت قرضوں میں کمی اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ IMF کی ویب سائٹ پر جاری اعلامیہ۔ حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیوں کے ثمرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 1500 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,18,200 تک پہنچ گیا۔ وزیراعظم کی بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو 7ویں صدارتی مدت کے آغاز پر مبارکباد۔ تہنیتی پیغام میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ صدر لوکاشینکو کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں کام جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کا کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا تفصیلی دورہ۔ دہشت گرد حملے میں متاثرہ جعفر ایکسپریس ٹرین کا معائنہ۔ ڈی ایس ریلوے کی حنیف عباسی کو تفصیلی بریفنگ۔ وزیر ریلوے کی کم وقت میں ٹرین کی مرمت پر ریلوے حکام اور عملے کی تعریف۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزانہ ربیعہ سے ملاقات۔ عازمین حج اور عمرہ زائرین کے لیے سہولت کے حوالے سے بات چیت۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کا دائرہ پاکستان کے دیگر شہروں تک پھیلانے سے متعلق تبادلہ خیال۔ حجاج کرام کے رجسٹریشن کے مسائل پر بھی بات چیت۔ سعودی وزیر حج کی ترجیحی بنیادوں پر پاکستانی حجاج کے مسائل کو حل کرانے کی یقین دہانی۔ پاکستانی حجاج کی سہولت کے لیے سعودی وزیر حج کی خصوصی توجہ باعث مسرت ہے۔ سردار محمد یوسف۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ سید طارق فاطمی کی امریکہ میں ملاقاتیں۔ امریکی کانگریس کی امور خارجہ کی کمیٹی کے چیئرمین برائن ماسٹ، پاکستان کاکس کے شریک چیئرمین جیک برگمین، ٹام سوزی، سڈنی کام لاگڈور نے امریکہ تعلقات، دو طرفہ تعاون اور معاشی تعلقات پر تفصیلی بات چیت کی۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ اولین ترجیح ہے۔ معاون خصوصی سید طارق فاطمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ہسپتالوں کے دورے کام کر گئے۔ غریب مریضوں کو اب ہسپتالوں میں بہترین طبی سہولتیں ملیں گی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کا بڑا اقدام۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فہرستیں جاری کرنے کا حکم۔ ہسپتالوں کی ایمرجنسی اور ICU میں سرجیکل اور ڈسپوزیبل سامان کو ہر صورت ممکن بنایا جائے۔ سرکاری ہسپتالوں میں شکایات کاؤنٹرز فعال کرنے کی ہدایت۔ مریضوں کو کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، مراسلہ۔ صحرا میں بنجر زمین کو زرخیز بنانے کے لیے محفوظ شہید کینال کی تعمیر کا فیصلہ۔ جدید آبپاشی نظام کے ذریعے 4120 کیوسک پانی فراہم کرے گی۔ 12 لاکھ ایکڑ زمین مختص۔ ایک موسمی کینال، پنجاب کے حصے کا اضافی پانی استعمال ہوگا۔ سلیمان کی ہیڈ ورک سے شروع ہوگی۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ رضاکارانہ واپسی میں 6 دن باقی۔ مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,76,194 تک پہنچ گئی۔ طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر۔ لڑکیوں کے لیے ثانوی اور اعلیٰ تعلیمی ادارے 3 سال سے بند۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ مزید 4 لاکھ لڑکیاں تعلیم سے محروم۔ پابندیاں برقرار رہیں تو 2030 تک 40 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں سکول سے باہر ہو سکتی ہیں۔ UN ویمن ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیما باہوس کا افغان لڑکیوں کے بنیادی حقوق کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بربریت جاری۔ تازہ اسرائیلی حملوں میں 11 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔
शहीद होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। शाम के इलाके दीर अपर पर भी इसराइली बमबारी, 6 अफराद जाँ बहक। यमन के शिमाली सूबे सादा पर अमरीकी फोर्सेस के हमले। यमन के हौसी ग्रुप का बहरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाज पर हमला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गजा में जंग बंदी की कोशिशों पर तबादले ख्याल। यूएई के सदर का गजा के लोगों को इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। देरपा अमन के लिए 2 रियासती हल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत की भी तौसीक। ऐसे हल के ख्वाह हैं जो तमाम फरीकैन की सलामती और इस्तेहकाम की जमानत दे। शेख मोहम्मद बिन जायद। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज वेलिंगटन में 5वां और आखिरी मैच। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान की 15 रुकनी खवातीन टीम का ऐलान। फातिमा सना पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगी। ओपनर शहवाल जुल्फ़िकार की 16 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। 6 टीमों पर मुश्तमिल आईसीसी इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में मुनक़िद होगा। इवेंट में मेज़बान पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स का कलंदर्स नाइट मनाने का ऐलान। कलंदर्स नाइट ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान में मुनक़िद होगी। तकरीब, क्रिकेट, मौसीकी और तफरीह का शानदार इम्तिज़ाज होगी। शायकीन क्रिकेट को कलंदर्स टीम के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। गुलकार आसिम असर, बिलाल सईद, सारा अल्ताफ और साहिर अली बग्गा फन का मुजाहिरा करेंगे। तकरीब में लाहौर कलंदर्स की ऑफिशियल किट और नया एंथम भी लॉन्च किया जाएगा। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। तेहरान के आज़ादी स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एशियन ग्रुप ए का मेजबान ईरान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। मेगा इवेंट में जगह बनाने के लिए ईरान को उज़्बेकिस्तान के खिलाफ सिर्फ मैच ड्रॉ करने की जरूरत थी। ईरान ने मुसलसल चौथी और मजमूई तौर पर 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में खेला जाएगा। इवेंट में 48 टीमें शिरकत करेंगी। और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, सर्बिया के नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अर्जेंटीना के फ्रांचेस्को सेरेंडोलो, अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्ट और बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव भी लास्ट 8 में जगह बनाने में कामयाब। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। IMF के तौसीई प्रोग्राम के तहत $1 अरब की किस्त फराहमी के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। प्रोग्राम के तहत माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ भी फराहम करेगा। मज़ीद तफसील फाहद अजीज की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तोसीही कर सहूलत प्रोग्राम और माहौलियाती तब्दीली से निपटने के नए प्रोग्राम के तहत पहले जायजे के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। IMF के साथ तोसीही कर सहूलत के जारी प्रोग्राम के तहत $1 अरब की किस्त की फराहमी के साथ साथ पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली से निपटने के नए प्रोग्राम के तहत $1 अरब 30 करोड़ कर्ज की मंजूरी भी दी गई है। प्रोग्राम 28 माह पर मुश्तमिल होगा। IMF के जारी करदा एलामिया के मुताबिक मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। IMF के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली से निपटने का नया प्रोग्राम
पाकिस्तान को कुदरती आफात के नुकसानात से निमटने और पानी के बेहतर इस्तेमाल में मदद देगा। IMF इलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता 18 माह में पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम के लिए मौसर इकदाम किए हैं, जिनसे महंगाई में नुमाया कमी आई है। IMF इलामिये में पाकिस्तानी हुकूमत की मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का एतराफ़ करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत कर्जों में कमी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात और तालीम और सेहत के शोबों को मजबूत करने के लिए पुरज़म है। IMF ने कहा है कि गुज़िश्ता 18 महीनों के दौरान पाकिस्तान ने सख्त मौशी मुश्किलात के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के हसूल में नुमाया पेशरफ्त की है। महंगाई अपनी कमतरीन सतह पर है और मौशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। इलामिया के मुताबिक IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मौशी और इक्तिसादी सरगर्मियों में मुसलसल बेहतरी की तवक्को है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स 1500 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,17,640 पर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज मार्केट में तेजी की क्या वजूहात हैं। जी ज़मीर अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और बेहतरीन दिन, सुबह से ही कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स में तकरीबन 1560 से ज़ायद पॉइंट्स का रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट 1,18,220 पर भी पहुंची। मार्केट में तेज़ी की असल वजह हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.3 अरब के कर्जे के हवाले से होने वाली पेशरफ्त है, जिसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो तय पा गया और जल्द पाकिस्तान को $1.3 अरब मिल जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो क्लाइमेट फंड के हवाले से बात चल रही है, जिसमें तकरीबन कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को $1 अरब और मिल जाएंगे। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती तो पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिल सकते हैं, जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो मज़ीद मुस्तहकम होंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रिको डेक में भी OGDCL की जानिब से जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से विजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई है, उसके बाद कभी इम्कान है कि पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में काफ़ी पोटेंशियल है, जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिससे ना सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं बल्कि मुलाजमतों के भी नए मौके मौसूल हो सकते हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में OGDCL और वो कंपनी जो कि ऑयल, गैस और माइंस एंड मिनरल से डील करते हैं, उनके जो शेयर्स है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने में आ रही है। ये तमाम कामयाबी इसी की वजह से कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार है और अगर इसी तरीके की पॉलिसीज़ और इसी तरीके की कंसिस्टेंसी बरकरार रही तो पाकिस्तान के जो मौशी अहदाफ हैं वो भी जल्द हासिल हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मईशत तरक्की की राह पर गामजन बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41%, तरसीलात ज़र, मैन्युफैक्चरिंग, IT बरामदात में इजाफा, जबकि महंगाई की शरह में माहाना बुनियादों पर 0.8% कमी हुई है। अब वज़ारत ख़ज़ाना ने मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अजीज। वजारत खजाना की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई में कमी, तरसलात ज़र और मालियाती इस्तेहकाम के बायस मईशत में बेहतरी देखने को मिली है। माली साल 2024-25 के इब्तदाई 8 माह में बैरून मुल्क से भेजी गई तरसलात ज़र $24 अरब तक पहुँच गई, जबकि फरवरी के महीने में यह रकम $3.1 अरब रही। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक फरवरी मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी अरसे के दौरान बरामदात का हुजम $21.8 अरब हो गया है। जुलाई तक फरवरी करंट अकाउंट खसारा $691 मिलियन रहा। मौशी रिपोर्ट के मुताबिक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $11.1 अरब तक पहुँच गए। जुलाई तक फरवरी टैक्स वसूलियों में 25.9% इजाफा हुआ है। इसी अरसे में नॉन टैक्स आमदनी में 75.8% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.8% कमी रिकॉर्ड हुई है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में चैलेंजेस के बावजूद बेहतरी देखने में आई है। गाड़ियों की पैदावार में 41.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई में कमी के बायस मौशी सरगर्मियां मजीद तेज होने का इम्कान है। मौशी तज्जियाकारों के मुताबिक पॉलिसी इस्लाहात और इस्तेहकाम की बदौलत पाकिस्तान की मईशत मुस्तकबिल करीब में मजीद बेहतर होने की तवक्को है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 7वें सदारती मुद्दत के आगाज़ पर मुबारकबाद दी है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने तहनीती पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम की तरक्की, खुशहाली और बहबूद के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि वो सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में काम जारी रखने के मुंतज़िर हैं।
वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कोयटा रेलवे स्टेशन का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर DS रेलवे इमरान हयात खान ने वफाकी वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर रेलवे ने गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्द हमले में मुतासरा जाफर एक्सप्रेस का भी मुआयना किया और कम वक्त में दोबारा ट्रेन की मुरम्मत पर रेलवे हुकाम और अमले की तारीफ की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बुलान जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों के वरसा में चेक भी तकसीम करेंगे। वज़ीर रेलवे के हमरा चेयरमैन रेलवे सैयद मज़हर अली शाह और CEO रेलवे आमिर अली बलोच और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ने सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फज़ान अल रबिया से जद्दा में मुलाकात की। मुलाकात में आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए सहूलियात और रोड टू मक्का मनसूबे का दायरा पाकिस्तान के दीगर शहरों तक फैलाने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुज्जाज कराम को बेहतरीन सहूलियतें फराहम करने पर फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी हुज्जाज की सहूलियत के लिए सऊदी वज़ीर हज की खुसूसी तवज्जो बाइस मसरत है। सऊदी वज़ीर हज ने तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तानी हुज्जाज के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि हुज्जाज कराम और मुतमरीन को सहूलियात फराहम करना सऊदी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सूबों के मुतल्लिका वज़रा, वफाकी सेक्रेटरीज और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में 1275 अरब रुपए से ज़ायद लागत के 13 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई, जिसमें ट्रांसपोर्ट, मवासलात, रेलवे, खलाई टेक्नोलॉजी और अवामी बुनियादी ढांचे समेत अहम शोबे शामिल हैं। कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान में मुआशी तब्दीली और सिंध में सैलाब से बहाली के इक़दामात की भी मंजूरी दी। इजलास में पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से आला सलाहियत वाली वैगनों और मुसाफिर कोचों की खरीदारी, पाकिस्तान का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट और सड़क के कई बड़े मंसूबे भी मंजूर किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पायदार तरक्की, बैनुल सूबाई राबते और इक़्तिसादी तब्दीली के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा किया। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का वर्चुअल इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में हुआ। वज़ीर ख़जाना बाफॉर्म में शिरकत के लिए चीन में मौजूद हैं। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख और दूसरे आला हुकाम ने शिरकत की। ECC ने पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से रेकोटिक प्रोजेक्ट और इसके तरक्याती मनसूबे में तब्दीलियों के हवाले से समरी पर गौर किया। ECC ने समरी में शामिल तजावीज़ की मंजूरी दी। ECC ने रेकोटिक प्रोजेक्ट के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और इसे इंतहाई कौमी अहमियत का मनसूबा करार दिया। ECC ने स्कर्दू में PSP कोचिंग सेंटर की तामीर के लिए 200 मिलियन रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी। मामले खुसूसी सैयद तारिक फातमी ने वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अमरीकी कांग्रेस की उमूर खारजा की कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मैस्ट, ज़ेली कमेटी जनूबी और वस्ती एशिया की रैंकिंग मेंबर रुकन कांग्रेस सिडनी काम लागरडोर और अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन जैक बर्गमैन और टॉम स्वाजिश शामिल थे। मुआविन ख़ुसूसी ने अमरीकी रहनुमाओं को हुकूमती पॉलिसियों, ख़ुसूसन हुकूमत की माशी तरजीहात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन तिजारती, माशी और सरमायाकारी के शोबाजात में ताल्लुकात का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत का नौजवानों के लिए इनकलाबी कदम वज़ीर आज़म डिजिटल यूथ हब का आज इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लिया जाने वाला ये कदम नौजवान के लिए इंतहाई अहम है। ये नौजवानों की तरक्की, मुलाज़मत, स्कॉलरशिप्स और स्किल्स समेत तमाम मौक़े एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होने का मौका फराहम करता है। कारोबार के लिए कर्ज की फराहमी, मुलाज़मतें, बैरून ममालिक जाने वाले नौजवानों को कर्जाजात की फराहमी भी डिजिटल यूथ हब का हिस्सा है। नौजवानों से मुंसलिक तमाम मौक़े डिजिटल यूथ हब पर एक जगह फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अस्पतालों के दौरे के बाद महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फहरिस्तें जारी करने का हुक्म दे दिया है और महकमे की जानिब से जारी किए गए मरासले में कहा गया है कि अस्पतालों के इमरजेंसी और ICU में सर्जिकल और डिस्पोजेबल सामान को हर सूरत मुमकिन बनाया जाए। हर अस्पताल की इमरजेंसी और ICU में सिरिंजेस, कैनोला, ड्रिप सेट, सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल टेप्स और बटरफ्लाई नीडल्स मौजूद होनी चाहिए। मरासले में कहा गया है कि सर्जिकल सुचर्स, यूरिन बैग, फुली कैथर, कार्टन रोल और कॉटन बैंडेज के अलावा न्यूस, गैस्ट्रिक ट्यूब और एंडथ्रेचल ट्यूब भी हर इमरजेंसी और ICU में मौजूद हो। महकमे की जानिब से जारी किए गए मरासले में अस्पतालों को हिदायत की गई है कि हर सरकारी अस्पताल अब अद्वियात की डिजिटल और मैनुअल फहरिस्तें आवीज़ा करेगा। सरकारी अस्पतालों में शिकायत काउंटर्स फाल करने और ड्यूटी रोस्टर्स आवीज़ा करने की भी हिदायत की गई है। मरासले में अस्पतालों में सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाने का कहा गया है।
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम कर दिया गया है। विमेन पुलिस स्क्वाड बाजारों में रश के औकात में ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गश्त करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मार्केटों में पहली मरतबा ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा विमेन पुलिस स्क्वाड का क़याम अमल में लाया गया है। बाजारों में शॉपिंग के लिए आने वाली ख़वातीन को हिरासत करने के वाक़यात की रोकथाम के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें बाजारों और मार्केटों का गश्त करेंगी। विमेन पुलिस स्क्वाड बाजारों में समाज दुश्मन अनासर की सरगर्मियों की भी निगरानी करेगा। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, चिन्योट, बोरेवाला, विहाड़ी, खानेवाल और दीगर शहरों के तिजारती मराकज़ में विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त शुरू कर दिया गया है। ख़वातीन ने विमेन पुलिस स्क्वाड के क़याम पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इससे शॉपिंग के दौरान ख़ुद को ज़्यादा महफूज और मुतमईन तस्वुर करते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद शाह से इटली के नए तैनात होने वाले काउंसल जनरल फेब्रज़िलियो लोबेले ने कराची में मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इटली के इंजीनियर्स ने 1960 में तरबेला डैम और कराची ता हैदराबाद सुपर हाईवे पर इंजीनियर्स ने तामीर किया, लेकिन इसके बाद किसी बड़े मंसूबे पर काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध इटली की शराकतदारी के मंसूबों में मुकम्मल तावन करेगी। काउंसिल जनरल ने कहा कि इटली के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका ट्रेनिंग जारी है, जो कौमी दिफा में अहम संग मील साबित होंगी। पहली बार तीनों मुसल्लह अफवाज के नौजवान मुश्तरका ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग PMA काकूल में हो रही है, जहां फौज, बहरिया और फ़ज़ाई के कैडेट्स एक साथ तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद नौजवान फौजियों को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाना और मुश्किल हालात में फौरी और दुरुस्त फैसले लेने की सलाहियत पैदा करना है। दौरान जंग वक्त की कमी और दबाव में फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए ट्रेनिंग निहायत अहम साबित होती है। तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों की ये मुश्तरका तरबियत बाहमी इत्तेहाद और उखुवत की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। हंगू में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में कलअदम TTP का कमांडर सईद हलाक हो गया है। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से एक कलाशनकोफ, 2 दस्ती बम और अफगानिस्तान का सिम कार्ड बरामद हुआ। मारा गया दहशतगर्द पुलिस एहलकार कुदरतुल्लाह की शहादत में भी मुलव्वस था। ऑपरेशन के दौरान फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 6 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,77,220 तक पहुँच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी, जबकि वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम भी किए गए हैं। मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर है। लड़कियों के लिए सानवी और आला तालीमी इदारे 3 साल से मुस्तकिल बंद हैं। तालीम की हालत ज़ार पर UN विमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बाहुस के इंकशाफात सामने आ गए हैं। UN विमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अफगान लड़कियों के बुनियादी हुकूक की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में लड़कियों को तालीम से महरूम रखना नस्लों तक असरात मुरतब करेगा। लड़कियों को फौरी तौर पर स्कूल वापस जाने की इजाज़त दी जाए। तालिबान अफगान ख़वातीन की बुनियादी हुकूक को फौरी तौर पर बहाल करें। उन्होंने कहा कि नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ मज़ीद 4 लाख लड़कियां तालीम से महरूम हो गई हैं। मौजूदा पाबंदियां बरकरार रहीं तो 2030 तक अफगानिस्तान की 40 लाख से ज़्यादा लड़कियां स्कूल से बाहर हो सकती हैं। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। जबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के ताज़ा हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया पनाह गज़ीन कैंप में इसराइली हमले में माँ और उसका कमसिन बच्चा शहीद हो गया। शहीद होने वालों में 5 बच्चे और भी शामिल हैं, जबकि शाम के इलाके को इसराइल ने बमबारी की है, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सऊदी अरब ने शाम पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि ममलकत शाम के साथ अपनी यकजहती का इज़हार करती है और सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक पर अपना किरदार अदा करने का मुतालबा करती है। अमरीकी जंगी तैयारों ने हौसियों के ज़ेर कंट्रोल यमनी इलाका सालम में बमबारी की है। अमरीकी बमबार तैयारों ने
इंसदादों के इलाके में भी बमबारी की है। यमन के हौसी ग्रुप ने जवाबी तौर पर बहरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमला किया है, जिसमें जहाज़ को जुज़वी नुकसान पहुंचने की इत्तला है। हौसी ग्रुप ने इसराइली दारकूमत तेल अवीव पर भी मिसाइल फायर किए हैं, जिसके बाद तेल अवीव में सायरन की आवाज़ें सुनाई दी गईं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और दोनों लीडरों के दरमियान मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और ग़ज़ा में जंगबंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने इस मौके पर गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने गज़ा में फौरी इमदाद यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इमाराती सदर ने कहा कि दो रियासती हल ही अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत देगा। दोनों सदूर के दरमियान अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात में तमाम शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। नाज़रीन, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सहरा में बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए महफूज शहीद केनाल तामीर की जाएगी। महफूज शहीद केनाल जदीद आबपाशी निज़ाम के जरिए 4120 क्यूसेक पानी फ्राहम करेगी। ये मनसूबा ग़िज़ाई इजनास और खित्ते से मुताबिकत रखने वाले फलों की काश्त को फ़रोग़ देगा। मनसूबे के लिए 12 लाख एकड़ ज़मीन मुहैया की गई है। महफूज शहीद केनाल एक मौसमी केनाल है, जिसमें इजाफी सैलाबी पानी और पंजाब के हिस्से का इजाफी पानी इस्तेमाल होगा। महफूज शहीद केनाल सुलेमान के हेडवर्क से शुरू होगी, जिसमें दरिया सतलुज का पानी इस्तेमाल होगा। महफूज शहीद केनाल की तामीर में दरिया सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं होगा। महफूज शहीद केनाल को पंजाब के मुख्तस हिस्से में से ही पानी फराहम किया जाएगा। इसकी तामीर से लाखों एकड़ बंजर आराजी सैराब की जा सकेगी। इंडर रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने इस मनसूबे की मंजूरी दी है। टीबी के खिलाफ शऊर बेदार करने से मुतालिक CMH रावलपिंडी में आगाही वॉक की गई, जिसका मकसद इसके तदारुक के लिए इक़दामात पर जोर देना था। इस मौके पर लेक्चर भी दिया गया, जिसमें CMH रावलपिंडी के मरीजों और कम्युनिटी को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरगीब दी गई। डॉक्टर्स ने टीबी के अलामात, तशखीस और इलाज पर रोशनी डाली। माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया ताकि टीबी का फैलाव रोका जा सके। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त इलाज से टीबी का फैलाव रोकना और सेहत की बहाली मुमकिन है। ईमान पाकिस्तान तहरीक के ज़रिए तमाम सरियाब रोड कोयटा में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली में इलाके के नौजवानों और ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। शरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। इस मौके पर चेयरपर्सन ईमान पाकिस्तान तहरीक और MPA फ़ारूक अज़ीम शाह ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाज़िम व मलसूम है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से ईद के मौके पर जायद किराया वसूल करने पर 427 गाड़ियों का चालान किया गया और मुसाफिरों को 10 लाख रुपए से जायद की रकम वापस कर दी गई। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अवाम का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी जायद किराया वसूल करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में टीमें मुसलसल निगरानी कर रही हैं। तर्जमान महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुहिम ईद उल फितर के बाद तक जारी रहेगी। नाज़रीन, पंजाब के दीगर हिस्सों की तरह फैसलाबाद में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी बच्चों के लिए ईदी बैग तकसीम किए गए। साबिक़ वज़ीर मुमलकत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी आबिद शेर अली ने मियाँ ताहिर जमील के हमरा गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर इकबाल टाउन में खुसूसी बच्चों में ईदी बैग तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खुसूसी बच्चों को ईद के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। अब तक ज़िला के 17 खुसूसी तालीमी मराकज़ में कुल 2519 बच्चों में ईदी बैग्स तकसीम किए गए हैं। मुआवनी खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा है कि रमज़ान मुबारक में रिलीफ पैकेज की फराहमी के साथ तकसीम के तरीक़ाकार में भी शफाफियत की कड़ी निगरानी की जा रही है और अटक में रमज़ान सहूलत बाज़ारों और निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से इजलासी सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान सहूलत बाज़ार में चीनी 130 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त की जा रही है। सलमा भट्ट ने रमज़ान सहूलत बाज़ार अटक का दौरा भी किया और अशिया खुरनोश की फराहमी, मयार और सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने निगहबान रमज़ान पैकेज के पे ऑर्डर्स हासिल करने वाले अफराद से भी मुलाकात की और कहा कि हुकूमत पंजाब अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार ला रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन महफूज पंजाब के तहत लोधरा ट्रैफिक कवानीन के आगाही के हवाले से वॉक का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब के तहत ट्रैफिक कवानीन के हवाले से लोधरा में आगाही वॉक निकाली गई। आगाही वॉक DP ऑफिस से निकाली गई और चिल्ड्रन पार्क पर आकर ख़त्म हो गई।
आगाही वाक में डिस्ट्रिक्ट बार के मेम्बरान, सिविल सोसाइटी और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने आगाही वाक के दौरान ट्रैफिक कवानीन की अहमियत उजागर करने के लिए बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। ये वॉक का एहतमाम किया गया है जिसका मकसद लोगों में ट्रैफिक कवानीन को उजागर करना है और इनके बारे में उन्हें आगाह करना है, जिसमें हम देखते हैं कि वन वे की वायलेशन, हेलमेट का न पहनना, ये वो मेन फैक्टर्स हैं जो हादसात और जानलेवा साबित हो रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ मिलकर इस पंजाब को महफूज करें। जो ये मुहिम जारी है, ये बड़ा अहसन इक़दाम है, इस पे हम आवाम बहुत खुश हैं। इससे हादसात में नुमाया कमी आ रही है। ये अच्छा इनिशिएटिव है आवाम के लिए। जो हमारे बच्चे यहाँ पे, बच्चे या बड़े, जैसे ये ब्लैक शीशे और कानून की जो पासदारी नहीं करते, ये उन्हीं के लिए मुहिम निकाली गई है। ट्रैफिक कवानीन की आगाही वाक में शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन महफूज पंजाब के तहत तेज़ रफ्तारी और कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाने का रुझान खतरनाक है। वालिदैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। लोधरा के शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से ईद उल फितर पर पंजाब भर में खुसूसी बच्चों में ईदी और तोहफ़ की तकसीम जारी है। जिला बिहाड़ी के 1184 स्पेशल बच्चों में ईदी और गिफ्ट तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं बहादुर हुसैन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से ज़िला बिहाड़ी के 1184 खसूसी बच्चों में ईदी और गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस पीर मुराद में हुई, जिसमें ज़िलाई इंतज़ामिया बिहाड़ी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से खसूसी बच्चों में ईदी और तोहफ़ तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें स्पेशल बच्चों को मैडम CM के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए ईदी डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब मुनक्कद की गई। बच्चे जो हैं वो ईदी रिसीव करके बहुत खुश हैं और वो मैडम जो CM हैं उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से खसूसी बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक करने पर स्पेशल एजुकेशन स्कूल के तालिब इल्मों ने खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। तो मरियम नवाज ने ये मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। खसूसी बच्चों में ईदी और गिफ्ट तकसीम करने के बाद ज़िलाई इंतज़ामिया और खसूसी बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत स्पेशल एजुकेशन सेंटर में पौधे लगाए। ज़िलाई इंतज़ामिया ने खसूसी बच्चों के साथ मिलकर शजरकारी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खसूसी बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही हैं ताकि इन्हें मुआशरे का फ़आल हिस्सा बनाया जा सके। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, बिहाड़ी। नाज़रीन, खुस्सा पंजाब की सकाफत और रिवायात का हिस्सा है जिसमें वक्त के साथ जिद्दत लाई जा रही है। ईद नज़दीक आते ही रहीम यार खान में शहरी खूबसूरत डिज़ाइन के रंग बिरंगे खुस्से खरीदने में मसरूफ हैं। इस पर देखते हैं अशफाक अहमद की ये रिपोर्ट। खुस्सा हमारी सकाफत और रवायत का हिस्सा है जिसमें वक्त के साथ साथ जिद्दत लाई जा रही है। ईद के मौके पर शहरी फैशन के साथ रवायत को भी अपनाते हैं। रहीम यार खान में ईद पर हाथ से तैयार किए जाने वाले खुस्सों की मांग में इजाफा हो जाता है। चमकते रंगों में केश और कढ़ाई वाले ये खुस्से आज के जदीद दौर में बुजुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन में यकसा मकबूल हैं। होगी मैचिंग में हर कोई बंदा खुस्सा यानी कि पहनना पसंद करता है। जो पहले आते होते थे बुजुर्ग जो पहनते होते थे वो पुराने वक्तों वाले अब तो बात ही ख़त्म हो गई है। अब यंग नस्ल जो है वो इसकी तरफ मुतवज्जा बहुत ज़्यादा हो रही है। खुस्सों की कीमतें दीगर जूतों की निस्बत कम और मुनासिब होती हैं जिससे ख़रीदारों को भी फ़ायदा होता है। बाकी तकरीबन शॉपिंग हो गई है, यहाँ पे सिर्फ जूते रह गए थे तो वो लेने आया हूँ। इस तरह का सूट होता है उसी तरह का खुस्सा मिल जाता है हमें ताकि ईद पे अच्छा लगे। खुस्से में तिल्ले की बेहतरीन कढ़ाई हो या मोती जुड़े हों, हर खुस्सा एक दूसरे से मुनफरिद होता है। ऐसे में कोई सादा खुस्सा पसंद करता है तो कोई नोकदार। खुस्से का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जहां नौजवानों का शौक पूरा कर रहा है वहीं सकाफत को जिंदा रखने का भी बायस है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। 24वें रोज़े की रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन ने उलमाए कराम ने मियाँ बीवी की जिम्मेदारियों और कामयाब शादी के मौजू पर गुफ्तगू की। इमरान हक कल्याणवी ने मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ भी बताए। तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली अपनी रिपोर्ट में। 24वें रोज़े की रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। बाद में नात रसूल मकबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। नशियात में उलमाए कराम अल्लामा कोकब नूरानी उकाड़वी और डॉक्टर अहमद कादरी ने दीन इस्लाम में मुआशरे में मियाँ बीवी और कामयाब घरेलू ज़िंदगी के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के बारे में बताया। ट्रांसमिशन में अदाकारा महा ताहिरानी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और मेज़बान एहसन खान और जुगन कासिम के साथ बच्चों को सबक आमूज़ कहानी सुनाई।
नशियात में कफालत के सेगमेंट में गरीब और नादा ख़ानदान की मदद की गई, जबकि क्विज़ के मुकाबले में अगले राउंड के लिए कामयाब होने वालों को इनामात दिए गए। शेफ मुनिज़्ज़ा ने मज़ेदार खाने की डिश बनाई, जबकि इमरान उल हक कल्याणवी ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ बताए। डॉक्टर बिल्किस शेख ने सेहतमंद टोटके भी बताए। ट्रांसमिशन के आखिर में अज़ान मगरिब दी गई। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की खुशनुदी और हुसूल सवाब के लिए मुखय्यर हजरात की तरफ से शाहकोट में मुस्तहिक अफराद के लिए इफ्तार दस्तरखान के इंतजामात किए जाते हैं। तफसील बता रहे हैं असद अली रिजवी। माह सयाम में मुसलमान रोज़ा रख कर इबादत करते हैं और अल्लाह करीम की खुशनुदी के हसूल के लिए मुखय्यर हजरात फलाही और मजहबी तंजीमें और रोज़ादारों की अफ्तारियों के लिए सुन्नत नबवी के मुताबिक अपने दस्तरखान को वसी कर देते हैं, जहाँ मुस्तहकीन, राहगीर और खास आम लोग बाइज्जत तरीके से अफ्तारी करते हैं और अल्लाह करीम का शुक्र बजा लाते हैं। हमें यहाँ पर रोज़ाना अफ्तारी करने आते हैं और अच्छे और मेयारी हिफ़ाज़त सेहत के मुताबिक हमें खाना दिया जाता है। हम यहाँ पे रोज़ अफ्तारी करने आते हैं और अच्छे तरीके से बाइज्जत तरीके से हमारी अफ्तारी होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है इनका, बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं ये। इस अफ्तार दस्तरखान पर अफ्तारी करने वालों को ठंडे मशरूबात, फलों और मुख्तलिफ अनवा अक़साम के मियारी खानों से तवाज़ो की जा रही है। शाहकोट में फलाही तंजीमों की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात पर अफ्तार दस्तरखान सजाए जा रहे हैं, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद अफ्तारी कर रहे हैं। ये दस्तरखान हम जो है वो गुज़श्ता कई सालों से लगाते आ रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है यहाँ पे रोज़ा खोलते हैं। बच्चे बुजुर्ग जब खाना खाते हैं तो उससे एक दिली सुकून मिलता है और खिदमत खल्क का जज्बा बढ़ जाता है। शहर भर में सजाए जाने वाले ये दस्तरखान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खालिस्तन रज़ा और खुशनुदी के हसूल के साथ साथ रोज़ादारों की खिदमत करना भी है, जो कि काबिल सत्ताइश अमल है। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाहकोट। मुल्तान की फलाही तंजीमों और मुखय्यर हजरात की जानिब से शहर भर में इज्तिमाई इफ्तार और सहर का अहतमाम किया गया है, जहाँ मुसाफिर और मुस्तहिक अफराद बड़ी तादाद में इफ्तारी और सहरी कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जफरुल्लाह खान। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। इस मुकद्दस महीने में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। वहीं फलाही तंजीमें और मुखय्यर हजरात मुस्तहिक अफराद के लिए सहर व अफ्तार का एहतमाम करते हैं, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रोज़े वगैरह भी पूरे 30 दिन ये सहरी भी करवाते हैं, अफ्तारी भी करवाते हैं और अल्लाह पाक इनकी रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। हम गरीबों को ये सहारा बने पड़े हैं। गरीब बंदे घर भी इफ्तारी नहीं कर सकते, जो जिनकी इतनी हैसियत नहीं है वो यहाँ पे आके रोज़ा सहरी भी कर सकते और इफ्तारी भी कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में नेकियां कमाने के लिए मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुस्तहिक नादार अफराद के लिए बड़े पैमाने पर अफ्तार का बंदोबस्त किया जा रहा है, ताकि रोज़ादारों को रोज़ा अफ्तार करवाने का सवाब हासिल किया जा सके। रमज़ान दस्तरखान खिदमत खल्क का एक अजीम सिलसिला है। अगर हम सब इस जज्बे के तहत ज़रूरतमंदों की मदद करें तो कोई भी शख्स भूखा नहीं सो सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल अफ्तारी और सहरी दोनों इंतज़ाम करते हैं। तकरीबन ये रोज़ के अफ्तारी में और सहरी में 600-700 अफराद हो जाते हैं। तकरीबन ये हमारे दादा अबू ने काम स्टार्ट किया था और हम इसको आगे लेके चल रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी हम ये ऐसे ही करते रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम करने वालों की ख्वाहिश होती है कि उनके दस्तरखान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़ा अफ्तार करें और उनकी नेकियों को कबूलियत का दर्जा हासिल हो जाए। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। इस्लामाबाद के रमज़ान बाजारों में अवाम को रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी है। तफसील अनीता अजीज से। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए रमज़ान बाजारों में सब्जियों और फलों समेत चावल, चीनी, घी, आटा, दालें और गोश्त आम बाजार से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई स्कीम का ऐलान किया, वो रोज आते माशाल्लाह 2-3 पूनी ले गया और बहुत अच्छी बात है। हम जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन बाजारों का मकसद अवाम को मयारी और सस्ती अशिया खुरोनोश फराहम करना है, ताकि महंगाई और मुनाफा खोरी की रोकथाम की जा सके। रमजान शरीफ में हर चीज में रिलीफ मिली है, बहुत अच्छा बाजार है, इसमें चीजें अच्छी मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं और हमें बहुत इसका फायदा मिला है। सस्ते रमजान बाजार हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात का हिस्सा है, जिनके जरिए अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना यकीनी बनाया जा रहा है। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नामवर ड्रामा निगार और मकबूल मुसन्निफा हसीना मोइन को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 4 साल बीत गए। उनकी जिंदगी पर देखते हैं कराची से नौरीन आसिफ की रिपोर्ट।
हसीना मोइन पाकिस्तान की एक मारूफ ड्रामा निगार और मुसन्निफा थीं। वो 20 नवंबर 1941 को भारत के शहर कानपुर में पैदा हुईं। उन्होंने रेडियो और टेलीविजन के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। 1969 में हसीना मोइन ने पहली मर्तबा पीटीवी के लिए ड्रामा ईद का जोड़ा लिखा, जिसके बाद उन्होंने पीटीवी के लिए मुतादिद ड्रामे लिखे और अपने मुनफरिद असलूब, दिलकश मुकालमों और जानदार किरदारों के जरिए उर्दू ड्रामों को एक नई जहद बख्शी। उनके लिखने का अंदाज सादा मगर असर अंगेज था। उनके ड्रामे मुआशरती मसाइल, बेहतरीन मुकालमों और हकीकत पसंदाना किरदार निगारी की वजह से बेहद मकबूल रहे। उनके मकबूल ड्रामों में तन्हाइयाँ, ज़ेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी, अनकही, शहजोरी, धूप किनारे, आहट, कसक और किरण कहानी जैसे कई यादगार ड्रामे शामिल हैं। देख क्या रही हो, खुदा की कसम फर्स्ट क्लास पीस है, फर्स्ट क्लास। एक मिनट। अब नहीं ना खापा, मुझे पता था आप खपानी होंगे। बहुत स्वीट हैं आप, ईमान से। मामू मेरे पास अगर गाड़ी होती ना तो मैं क्या शान से जाती उसकी शादी। हसीना मोइन ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम किया और कई फिल्मों के स्क्रिप्ट्स लिखे। हसीना मोइन पहली पाकिस्तानी मुसन्निफा थीं जिन्होंने भारतीय फिल्म हिना के लिए मुकालमा नवेसी की। हसीना मोइन को उनकी खिदमात के एतराफ में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। हसीना मोइन 26 मार्च 2021 को 79 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं, लेकिन उनकी तहरीरें आज भी नाज़रीन को महसूस करने के साथ नए लिखने वालों को सीखने का मौका फराहम करती हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गवर्नर हाउस कराची में मारूफ आर्टिस्ट वासिल शाहिद की खूबसूरत खत्ताती की 3 रोज़ा नुमाइश हुई। अफवाह बता रही हैं आयशा आफरीन। खत्ताती सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि मुसलमानों की सकाफत और अकीदे की तर्जुमान है। गवर्नर हाउस कराची में 23 मार्च की निस्बत से होने वाली इस नुमाइश में फन खत्ताती के 23 फनपारे पेश किए गए। पाकिस्तान टेलीविजन की अजीम शान ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान के दौरान तख्लीक किए जाने वाले इन फनपारों में 12 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया। जैसे इस्लाम में फ़न खत्ताती की बहुत अहमियत है, ये हमारी तहज़ीब है, इस तरह पाकिस्तान की बुनियाद में इस्लाम और उसकी तहज़ीब की इसी तरह से बहुत अहमियत है। ये जो हुस्न कागज़ पे आता है, कैनवस पे आता है, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके अंदर मौजूद ना हो। नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी समेत दीगर मौजूदीन शहर ने शिरकत की और इसके इनेकाद को सराहा। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आज क्योंकि वैसे ही इनका कौमी असम्बली में इनकी ये जो चीज़ें हैं वहाँ गैलरी में लगी हुई हैं, पंजाब असम्बली में लगी हुई हैं और आज इन्होंने हमें इस गवर्नर हाउस सिंध में भी इज़्ज़त बख्शी। वासिल साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने काम को जो है पेश किया है और गवर्नर साहब को भी थैंक यू कहेंगे हम कि उन्होंने माशाल्लाह उनको इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने काम को यहाँ पर जो एक एग्जिबिट करें। एक बहुत खुशी सी सुकून सा लग रहा है यहाँ आकर। इतनी खूबसूरत इनके फनपारे बने हुए हैं और इतनी खूबसूरती से इन्होंने अपनी सारी पेंटिंग बनाई है। हमें बहुत अच्छा लगा इस हुनर को देख के और हमें सराहना चाहिए ऐसे टैलेंट को, ऐसे आर्ट को। ये नुमाइश फन से मोहब्बत करने वालों के लिए एक यादगार तजर्बा साबित हुई, जहाँ अकीदत, तारीख और जमालियात का हसीन इम्तिजाज नजर आया। रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कुरानी आयात और अल्लाह के खूबसूरत नामों की ये खत्ताती आर्टिस्ट की महारत और उसकी अल्लाह से मोहब्बत का वाज़ेह इज़हार है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जैसे इक़दामात ने पाकिस्तान की तिजारत को फ़रोग़ दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने बुनियादी इक़्तिसादी ढांचे को फ़ाल बनाकर सरमायाकारी के लिए मौक़े पैदा किए हैं। चीन में बाग फार्म प्राय एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी मार्केट तक रसाई, इलाकाई रवाबित में इजाफे और जामे आलमी मईशत के फ़रोग़ के लिए मजबूत कसीरुल जहती ताउन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि आलमी ई कॉमर्स की तोसी पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को बाइख्तियार बना सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है, माहौलियाती तब्दीली और माहौलियाती अदम मसावात को दूर करने की ज़रूरत है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि दुनिया को मिलकर एक कसीरुल जहती, पायदार और जिद्दत पर मबनी आलमी मईशत की तामीर करनी चाहिए, ऐसी मईशत जो तमाम ममालिक को तरक्की और खुशहाली के मौके फराहम करे। उन्होंने कहा कि तरक्की पसीर मईशतों को मुनासिब माहौलियाती, माली इमदाद और टेक्नोलॉजी की मुंतकली आसान बनाई जाए।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پٹوہار اور شمالی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بنظیر آباد 42، دادو 41 اور مٹھی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامے میں آپ جان سکیں گے کھیل کی دنیا کا حوال۔ کھیل کی خبروں میں خوش آمدید ناظرین، ویلنگٹن میں 5ویں اور آخری T20 میچ میں پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ کیوی کپتان مائیکل بریسول نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان کی جانب سے محمد حارث اور حسن نواز نے اننگز کا آغاز کیا تو حسن نواز 0، محمد حارث 11 اور عمیر یوسف 7 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ عثمان خان بھی صرف 7 رنز بنا سکے۔ 5 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ T20 سیریز کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 29 مارچ کو نیپیر میں کھیلا جائے گا۔ PSL 10 کے آفیشل ترانے کے گلوکار کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے آفیشل ترانے میں معروف گلوکار علی ظفر آواز کا جادو جگائیں گے۔ PSL انتظامیہ نے سوشل میڈیا آفیشل اکاؤنٹس پر سیزن 10 کے ترانے کا پوسٹر جاری کیا ہے جس میں سنگر علی ظفر کو نقاب میں دکھایا گیا ہے۔ PSL کے 10ویں سیزن کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ ایونٹ 18 مئی تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں منعقد ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ فرنچائز لاہور قلندرز نے قلندرز نائٹ منانے کا اعلان کر دیا۔ قلندرز نائٹ گریٹر اقبال پارک مینار پاکستان میں منعقد ہوگی۔ لاہور قلندرز کی انتظامیہ کے مطابق تقریب کرکٹ، موسیقی اور تفریح کا شاندار امتزاج ہوگی۔ تقریب میں لاہور قلندرز کی ٹیم شرکت کرے گی۔ شائقین کو کھلاڑیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ گلوکار عاصم اظہر، بلال سعید، سارا الطاف اور ساحر علی وگا فن کا مظاہرہ کریں گے۔ تقریب میں لاہور قلندرز کی آفیشل کٹ اور نیا اینتھم بھی لانچ کیا جائے گا۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے پاکستان کی 15 رکنی خواتین ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ فاطمہ ثنا پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گی۔ اوپنر شواز ذوالفقار کی 16 ماہ بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہوئی ہے۔ 6 ٹیموں پر مشتمل ICC ایونٹ 9 سے 19 اپریل تک لاہور میں منعقد ہوگا۔ ایونٹ میں میزبان پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، تھائی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی۔ سنگل لیگ راؤنڈ رابن فارمیٹ پر مشتمل ایونٹ کے 15 میچز قذافی اسٹیڈیم اور LCCA گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے افتتاحی میچ میں پاکستان کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے لاہور میں کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ جاری ہے۔ LCCA گراؤنڈ میں کرکٹرز کی صلاحیتیں جانچنے کے لیے ٹیم گرین اور ٹیم بلیو کے درمیان پریکٹس میچ کھیلا گیا جس میں ٹیم بلیو نے 3 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی۔ ٹیم گرین پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49.2 اوورز میں 267 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی اور گل فیروزہ نے 104 رنز کی اننگز کھیلی۔ ٹیم بلیو نے مطلوبہ ہدف 47.4 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ شواز ذوالفقار نے 85، سدرا امین نے 53 اور تربیتی کیمپ 30 مارچ تک جاری رہے گا۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا آغاز 9 اپریل سے لاہور میں ہو رہا ہے۔
कतर में ग्लोबल सेलिब्रिटी लीग के कर्टन रेजर इवेंट का इन्नकाद किया गया। दोहा में होने वाली पुरवकार तकरीब में क्रिकेट और शोबिस सितारों ने शिरकत की। चेयरमैन ग्लोबल सेलिब्रिटी लीग शेख सऊद अब्दुल्ला अलसानी भी तकरीब में शरीक हुए। इवेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों पाकिस्तान, भारत, कतर, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की ऑफिशियल किट की भी रोनुमाई कर दी गई। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान नजीर बाज़ाब्ता तौर पर ग्लोबल सेलिब्रिटी लीग का हिस्सा बन गए, जबकि साबिक कौमी कप्तान शाहिद आफरीदी GSL के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शामिल हो गए हैं। कतर की वजारत खेल और नौजवानान के ताउन से मुनक्किद होने वाली GCL में आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर्स और मारूफ शोबिस सितारे एक्शन में नजर आएंगे। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर में शाम ने पाकिस्तान को हरा दिया। अल आसा में खेले गए ग्रुप E के तीसरे राउंड के मैच में शाम ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 गोल से कामयाबी समेटी। फातेह टीम की जानिब से पहला गोल खेल के 23वें मिनट में अहमद फाका ने किया। दूसरा गोल 56वें मिनट में उमर अल सोमा ने किया। पाकिस्तान की टीम गोल करने में नाकाम रही। इस कामयाबी के बाद शाम की टीम ग्रुप E में टॉप पोजीशन पर आ गई है। शाम का अगला मैच अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान की टीम म्यांमार से टकराएगी। ईरान ने अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तेहरान के आज़ादी स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एशियन ग्रुप ए का मेज़बान ईरान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। मेगा इवेंट में जगह बनाने के लिए ईरान को उज़्बेकिस्तान के खिलाफ सिर्फ मैच ड्रॉ करने की ज़रूरत थी। ईरान ने मुसलसल चौथी और मजमूई तौर पर 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है। जापान और न्यूजीलैंड भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप अगले साल अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेज़बानी में खेला जाएगा। इवेंट में 48 टीमें शिरकत करेंगी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अर्जेंटीना के फ्रांचेस्को सेरेंडोलो, अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा और बल्गारिया के ग्रेगोर मित्रोव भी लास्ट 8 में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में जारी ATP मास्टर्स 1000 इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच ने इटली के लोरेंजो मसीटी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। 6 मरतबा के चैंपियन जोकोविच ने मसीटी के खिलाफ 6-2 और 6-2 से कामयाबी समेटी। अर्जेंटीना के फ्रांचेस्को सेरेंडोलो ने नॉर्वे के केस्पर रूड को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-2 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा ने फ्रांस के गायल मॉनफिल्स के खिलाफ 6-4, 2-6 और 6-4 से कामयाबी समेटी। क्वार्टर फाइनल्स में कोर्डा का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। बल्गारिया के ग्रेगोर दिमित्रोव ने अमेरिकी खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-4 और 7-5 से जेर किया। लास्ट 8 में दिमित्रोव फ्रांचेस्को सेरेंडोलो के मध्य मुकाबले होंगे। इटली की जैस्मिन पाओलिनी मियामी ओपन विमेंस सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। फ्लोरिडा में खेले जा रहे WTA 1000 इवेंट के क्वार्टर फाइनल में 6 सीड जैस्मिन पाओलिनी ने पोलैंड की मैग्डालेन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। पाओलिनी ने लेनत के खिलाफ 6-3 और 6-2 से कामयाबी समेटी। जैस्मिन पाओलिनी WTA 1000 इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली इतालवी खातून है। सेमीफाइनल में पाओलिनी का मुकाबला आलमी नंबर 1 अरीना साबालेंका से होगा। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
दोस्त, हर वक्त बर वक्त। Ramadan, Pakistan.